Okay. So, hello everyone. Welcome to the ethics class, ethics series. So, this series re will be doing 10 classes roughly. Okay. So, ଏବେ ମୁଁ 10ଟା class ରଖିଛି and will be adjusting that accordingly. Syllabus କେତେ ସରୁଛି କେତେ ନାହିଁ 10ଟା class ରେ ଯେହେତୁ 10ଟା chapter ଅଛି so we will be trying to cover one chapter in every class. We will be taking around to 2 hours for each class. Broad, I mean, will not go not go deep. कौन बेसिक जिनस अच्छी कौन टॉपिक्स ऊपर तुमको पढ़ियार अच्छी से जिनस गुड़ा मुझे कहीदेवी रेस्ट यू नीड टू व्हाट study and those who have not made notes yet please do prepare your notes for last time revision. Okay, तो आज आम आई होप तुम समस्त सिलेबस सांगे एक्वाइंटेड अच्छे एथिक्स और सिलेबस समस्त देखी तो फर्स्ट चैप्टर आज आम स्टार्ट करवा फर्स्ट चैप्टर जेटा से कौन यस एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस तो ये ब्रॉडली आमर पाखापाखि माने कौन कौन टॉपिक अच्छी ये 15टा पाखापाखि टॉपिक अच्छी सबहेड अच्छी से सबहेड गुड़ा मुझे लिस्ट डाउन कर दूसरी राइट सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू कि तुमको सही से टॉपिक गुड़ा ही रेडी होकर जबार अच्छी. ओके सो लेट मी लिस्ट डाउन फर्स्ट टॉपिक. प्रथम जिनस जोटा अच्छी डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन. ओके तो प्रथमे आम देखा व्हाट इज एथिक्स definition of ethics, determinants of ethics and consequences of write down and consequences of ethics in human action and consequences of ethics in human action. So this is the first part that will be dealing. Okay. Second, ethics has various dimensions. Bioethics अच्छी, okay, global ethics अच्छी, ठीक अच्छी, war ethics अच्छी. तो आमे इतरे अलगा अलगा environmental ethics अच्छी, dimensions of ethics देखिए. कौन types रो ethics अच्छी. Okay. Third, role of family, society and educational institutions in shaping or building value and ethics. Role of family, school and society in building or framing or shaping ethics or value. Okay, next important part is consequences of ethical and unethical actions on personal and professional relationship. Consequences of ethical actions in personal and professional life or professional aspect. Okay, ठीक है. Next we will be dealing with value, social value and crisis of ethical value. Value, social value and crisis of value. Social value and crisis of value. Okay. Next is an important part, ethics in public and private relationship. So a part रा में देखिए केमती private relationship, that is our relationship with parents, our relationship with our peer, how ethics plays a role in it, and along with that how ethics plays a role in all the public relations. So when you will be appointed in some public position, you will be appointed as civil servant. So what ethical principles should you follow to maintain a balanced relationship with the common citizenry? Okay, that is ethics in private and public relationship. Ethics in private and public relationship.
ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज इंपोर्टेंट लाइफ लेसन्स और इंपोर्टेंट एथिकल लेसन्स फ्रॉम ग्रेट पर्सनालिटीज important ethical lessons from great personalities ଏଥିରେ ଆମେ starting from Aristotle, Plato, Kant, Bentham, ओके जॉन स्टुआर्ट मिल तापर इंडियन फिलोसोफर जो मान अच्छे बुद्ध जैन महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद एमती करी पाखापाखि विल बी कवरिंग 14 to 15 फिलोसोफर्स जो माने एथिक्स एंड मोरालिटी एवं वैल्यू सिस्टम ऊपर बहुत सारा प्रिसेप्ट देइछन ठीक अच्छे ग्रेट लीडर्स भी जो मैंने अच्छे ये आम आहरी देखा कि जो मैंने बर्डिंग ब्यूरोक्रेट्स अच्छा यंग ब्यूरोक्रेट्स अच्छा कि ऑलरेडी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अच्छा से मैंने कौन कौन एक्शन इमती कर एल्स कौन कौन एग्जांपल सेट कर दैट कैन बी टेकन एज व्हाट important points while we are framing our answer and also this particular part जो lessons from important personalities it can also be used greatly to value add in our case studies case study रे आमे जते आंसर लिखुचे किबा आमे कोनोसी प्रकार आर्गुमेंट दोचे सेटा को सपोर्ट करिया पई आमे ए सब जेमती यूटिलिटेरियन थ्योरी हेगला मेटा एथिक्स रो थ्योरी हेगला मध्यम मार्ग बा मिडिल पाथ बुद्धिज्म रो हेगला ओके ये सब जिनस को आमे सेटरे एज एन एग्जांपल और एज आर्गुमेंट आमे सेटी पुट करि परिबे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एथिक्स इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस बाय द वे हैप्पीनेस ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारची इन वन ऑफ द यूपीएससी मेंस सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस ओके सो दिस सीम्स लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन but this can be written in a multidimensional way covering various philosophical traditions so what do you mean by ethics sorry happiness right next next we'll discuss what is the role of education in shaping or education as a tool for individual development and social transformation education as a tool for write down education is a tool for individual development and social transformation okay ठीक अच्छे next next we'll discuss about value system value system okay value system okay अच्छा आमे मु तुमको आउट जिंसो कहली जोटा एथिक्स इन पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल और पब्लिक रिलेशनशिप सेही थिरे ट्रस्ट डेफिसिट मध्ये हमें गोटे पॉइंट डिस्कस कर ट्रस्ट डेफिसिट ओके we'll also be discussing about patriotism and nationalism patriotism and nationalism because these are important determinants of ethics it guides our action and behavior especially in public aspects okay the last part of our discussion will be contextual nature of justice what do you mean by justice what practices are just and what practices are unjust and how to transform unjust into just so we'll be discussing the contextual nature of justice the last part is contextual nature of justice nature of justice अच्छा so count it down केतरा हैला टोटल माने फर्स्ट चैप्टर पई केतरा हेडिंग्स हला हमरो केतरा हेडिंग्स 10 हेडिंग्स ओके
से ट्रस्ट डेफिसिट को ऐड करदे क्या सांगे पब्लिक रिलेशनशिप ऐड करदे तो ट्रस्ट डेफिसिट को जब आम अलग रखा तेरे 11टा बट मोर लेस आम नहीं जावा आम 10टा कॉन्सेप्ट विषय 10टा सब हेडिंग्स फर्स्ट चैप्टर को रेडी एंड नहीं कि चलो कि ये जो 10टा सब हेडिंग मु कहली एथि निहाती रूप से तुम्हें 2टा ରୁ 3टा क्वेश्चन मेन्स रे डायरेक्टली पाई डायरेक्टली ओके एंड इनडायरेक्टली मुझे कहूँ इनडायरेक्टली अर्थ हो तुम्हें जो जो कॉन्सेप्ट्स कि जो कंटेंट ये चैप्टर डेराइव करिवो सेटा को तुम अन्य चैप्टर रे भी यूज करि पारि जेमति फॉर एग्जांपल हमें ट्रस्ट डेफिसिट पढ़िले पेट्रियोटिज्म बा नेशनलिज्म विषय रे पढ़िले सेटा को हमें प्रोबिटी इन गवर्नेंस चैप्टर यूज करि पारि ओके सेटा को हमें एटीट्यूड चैप्टर रे ऐड करि पारि जदि एटीट्यूड रो आंसर लिखुचे तो यार कंटेंट को लेके सेठी पके पारि एंड डेफिनेटली केस स्टडीज रे हमें बहुत सारा जिनस नहीं अल्टीमेटली सेटा को सब्सटेंशिएट करिया पे सेठी हमें ये पॉइंट्स गुरा नहीं इटू पुट कर पारि ओके सो एथिक्स जो पेपर अच्छी एटा को तुम्हें कौन सेपरेटली गोटे गोटे चैप्टर को पढ़ माने पढ़नी कि जिते आंसर भी लिखुच कौन कर जहाँ प्रीवियस चैप्टर जहाँ शिखिच कि प्रीवियस चैप्टर जहाँ रेलेवेंट अच्छी जदि नेक्स्ट चैप्टर रे सेटा को लेखा जाई पारिबो जदि रेलेवेंट अच्छी देन डेफिनेटली पुट इट जेते तुम इंटर चैप्टरल किंबा इंटर कॉन्सेप्ट एनालिसिस करके लिखिबो तुम बेसी मार्क्स पाइबार चांसेस सेति बेसी बढ़ी ओके सो यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी व्हाइल आंसरिंग एथिक्स आंसर राइट तो जिते नुआ जिनस किंबा तुम प्राइवेट लाइफ रो मध्य तुम्हें जदि किछि इमतिया इंस्टेंसेस अच्छी कि तुम कौन वे एथिक्स गुड एथिकल बिहेवियर को शोकेस करिच तुम सेटा को भी एज एन एग्जांपल साइड करि पारिबो और एल्स यू हैव वॉच्ड सम मूवी और सम डॉक्यूमेंट्री जो थरे तुम इमती 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 कौन क्वालिटी किंबा इमती कौन कौन पर्सनालिटी से तुम देखिच देन सेटा को भी तुम साइड करि पारिबो टू जस्ट गिव एन एग्जांपल there is a series in Netflix not a series yes it is a series for railway man okay समझते देखी सेटा anyone so it is led by R Madhavan railway man कौन है ओके सो रेलवे मैन को गोटे सीरीज अच्छी व्हिच इज लेड बाय आर माधवन तो that can be cited as a great example that how a public servant how he sacrifices his personal benefit or personal interest for achieving larger public good okay basically it is the story of भोपाल गैस ट्रेजरी जोड़ा 1984 रे हितला जो मिथाइल आइसोसाइनेट वाला केस तो जब गैस रिलीज हो गला तो ट्रेन्स वर अप्रोचिंग फ्रॉम आउटसाइड भोपाल टू भोपाल टाउन बट दे वर एंटायरली अनइन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक गैस तो सेमाने जदि टॉक्सिक गैस को कांटेक्ट रे आसीबे तो बहुत लोगों डेथ सेठी आहुरी ही था तो डेथ टोल को कम करिया पे सेही टाइम रे जे रेलवे रो असिस्टेंट जनरल मैनेजर थिले ही वाज सिविल सर्वेंट ओके तो सी कौन करते से पर्सनली जाकि रेलवे माने गैस से पर भी इनफेक्ट होते से गैस माने ये रे आसिक रेलवे स्टेशन को निजे जाकि ट्रेन मान को रोकी जी यात्री मैंने थे जो मैंने भोपाल को इंट्रोड्यूस करते से पर्सनली रेस्क्यू करते ओके सो दिस एग्जांपल्स कैन बी साइटेड इन योर आंसर्स एज वेल ओके तो गोटे गोटे कर बर्तमान स्टार्ट करवा विदाउट वेस्टिंग टाइम okay one more thing don't keep it fixated ethics रो आंसर को केते बेल कि एथिक्स तले पढुछ सेटा को फिक्सेटेड करी रख ओके जेमति तुम पॉलिटी पढुछ और तुम इकोनॉमी पढुछ और तुम ऑप्शनल पढुछ तार गोटे बेस लाइन अछि से बेस लाइन भितर ही तुम से जिंस को स्टडी करूछ सेति की भितर ही लिखुछ तुम आउटसाइड ता बाहर को जाउ बट एथिक्स रे सही अप्रोच रखिबोनी एथिक्स शुड बी स्टडीड इन एन एंटायरली ओपन वे जेते तुम ओपन रखिबो जेते निज को लिबरेट रखिबो निज कौन
थिंकिंग बा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जेतिकी वास्ट करिवो तुम आंसर सेते सुंदर हो एवं तुम सेतिकी मार्क पाइबो। ओके, दो गोटे सिलेबस दिया जाइए एथिक्स रो, बट आम पास्ट इयर्स रे देखीचे कि दिस इज द ओनली पेपर जो थरे तुम 150 और 160 ऊपर भी स्कोर करि परिबो, whereas on the rest of the papers, paper 1, paper 2, paper 3 रे I guess 130 is I mean what scoring 130 or 140 becomes very difficult, but ए पेपर रे प्रीवियस ईयर रे बहुत पिला 150 ऊपर भी स्कोर करिसथि। केमती सिलेबस तो से डेफिनेटली पढ़ी ता संगे क्रिएटिव एलिमेंट्स बहुत सारा ए पेपर भीतर ऐड कर। ओके, आउ सबुठु चैलेंजिंग पे पचार देला तुम सिलेबस भलसे पढ़ी जाइछ आउ जाओ जो फर्स्ट क्वेश्चन पचार देला व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस और व्हाट डू यू मीन बाय सैडनेस और व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो एमतिया क्वेश्चन देखो देखो जोटा कि तुम सिलेबस रे पढ़ी न, तो इट पुशेस यू टू थिंक। तो से जो थिंक भाबिबा पय जो टाइम नियो सेतिरे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, राइट। आउ तुमको स्टिपुलेटेड टाइम दिया है गोटे क्वेश्चन पे तुम्हें मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मिनिट्स नहीं पार, नॉट मोर देन दैट। तो से 7-8 मिनिट रे तुमको भाबिकी दुनिया जिनस भाबिकी फ्रेमवर्क रे गोटे पकेयार अछि, सेरा को गोटे मल्टी डायमेंशनल वे रे तुमको रिप्रेजेंट करियार अछि एंड गोटे कोन गोटे भल आंसर से लिखियार अछि। एडेड विथ दैट एथिरे केस स्टडीज मध्ये पचार। केस स्टडीज रे हमको कोन फर्स्ट हमको जो पैसेजटा देछि सेटा को भलसे पढ़िया को पड़े, भलसे पढ़ी के बुझिया को पड़े। जोटा पढ़ी के बुझिया को पाखा पाखी से 6 ରୁ 8 मिनिट से पढ़, तापर तुम बिट बाय बिट आंसर क्वेश्चन देइतबो सेटा को तापर तुमको आंसर लिखिया को पड़े। तो 3 आवर्स रो जो पेपर होची केस स्टडी पढ़िया को 15 मिनिट से माइनस कर दे। जदि दुईटा केस स्टडी आसुची देन स्ट्रेट 15 मिनिट माइनस कर दो, तो तुम पाखरे केते बंचिले 2 आवर्स एंड 45 मिनिट्स। तो जो आंसर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 रो जो आंसर गुडा तुम्हें 3 आवर्स रे रखुदल सेतिकी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को तुमको 2 आवर 45 मिनिट रे एथिक्स रे लिखिया को पड़े। सो सेति में तुमको कोन प्रैक्टिस बहुत करिया को पड़िबो। तुमरो थिंकिंग जो थॉट प्रोसेस अछि सेटा को आहुरी एक्सपेडाइट बा फास्टन करिया को पड़िबो। आउ बहुत सारा तुमरो राइटिंग स्पीड जोटा अछि सेटा को तुमको मैनिफोल्ड करिया को पड़िबो, सो दैट तुम 2 आवर 45 मिनिट रे 300 मार्क्स रो सॉरी 250 मार्क्स रो क्वेश्चन सब जाको अटेम्प्ट करके आसी पारे। ओके, नेक्स्ट। तो चलो आउ बेसी आमे टाइम वेस्ट न करके एबे डायरेक्ट स्टार्ट करिबो। ओके, so before kick starting I would like to start it with a quote. Okay, तो जने एल्बर्ट कैमस कहि के जने थिंकर थिले, एल्बर्ट कैमस। Okay, what is this? Sorry, huh? Okay, again in this your. Okay, let it. एल्बर्ट कैमस। ओके, एल्बर्ट कैमस तांकर गोटे बुक रे से लिखे थिले कि ए मैन विदाउट एथिक्स इज जस्ट लाइक अ बीस्ट लेफ्ट ओपन इन द जंगल। ओके, सो ए मैन विदाउट ethics is a wild beast left open in the world. A man without ethics is a wild beast left in the or loose open this world. Okay, so from this statement you can reflect how important ethics become. This is also telling about the nature of human evolution. The basic difference between humanly existence and animal existence is that we have ethics, we have values, and we have morality that is absent in the jungles, right? If you study the lives of the animals, the one thing they are lacking is ethics and values and what? Morality, right? So if the lion is hungry
or the lion gets an opportunity, he or she can eat her own cub. Okay, they become the what, the animals of the same fraternity become their prey. Okay, it means what, they have no critical thinking ability, they lack ethics, which we humans have. Okay, so now I would like to ask, what do you mean by ethics? What is your definition of ethics, Priyanka? Hmm. Okay, anyone else? Subhashila, what do you mean by ethics? Hmm. Sorry. Okay, Amisha, what do you think ethics is? Morals and values. Okay, okay. So here come the definition in a cinematic style. Okay, so ethics is a field of study, first of all. Okay, ethics is a field of study that studies what? That studies about the moral questions and principles. Ethics studies about what? Moral questions and principles. कोटा ठीक कोटा भूल कोटा immoral कोटा moral सेटा ethics study कर. Added with that, it also distinguishes between what is right and what is wrong. It also distinguishes between right and wrong. It also distinguishes between right and wrong, or good behavior or bad behavior, or good behavior or bad behavior, or evil ର कौन opposite antonym? Sorry, godly. How? कौन? Evil or good, or vice or virtue. Okay, so basically it distinguishes between good behavior or bad behavior, good conduct or bad conduct, acceptable or unacceptable conduct. Okay, this is just one aspect. It studies what is good and what is bad, what is right and what is wrong. The second aspect is how, or how a person becomes bad and how he can be converted into good. The second aspect is, write down, ethics is also about what is bad and how to avoid it. Ethics is also about what is bad and how to avoid it. ठीक अच्छे, तो बेसिकली एथिक्स को आमे कहि परिबा, एथिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कैरेक्टर, conduct and behavior. Okay, ethics is both an art and science of character, conduct and behavior. Write this down. Ethics is an art and science of character, conduct and behavior. Now coming to the next part. ठीक अच्छे, बहुत सारा डेफिनेशन भीतर को जीवा दरकार नहीं, गोटे अदर डेफिनेशन ही गला जोटा जोटा मीनिंगफुल डेफिनेशन सेटा मन रखे देला इन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर आई एम टेलिंग एटीट्यूड कोन, एप्टीट्यूड कोन, इमोशनल इंटेलिजेंस कोन, एथिक्स कोन, मोरालिटी कोन, वैल्यू कोन, गोटे गोटे डेफिनेशन मन रखे देला, देन सेटा को लिखि के आकु पड़ी. ओके, बहुत सारा डेफिनेशन पिला कोन करंती फर्स्ट पेज रे ही से दी दिन तीन दिन
सेटा को रट्टा लगे बारंबार लिखुवे माने सेतिर टाइम वेस्ट है सो डोंट डू दैट ओके गोटे डेफिनेशन मन रहा और एक्जाक्ट डेफिनेशन मन न भी रहिले तार पाखापाखी डेफिनेशन जोटा तुम बुझिल सेटा भी जदि लिखुछ दैट इज एक्सेप्टेबल ओके the examiner is not what expecting you to write every definition in detail ओके तुम केते बुझिछ मेन तार फोकस होची मेन बॉडी किबा जोटा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को तुम केमते एड्रेस करछ दैट शुड बी योर प्राइमरी कंसर्न ठीक अछि नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स कोन importance of ethics ओके तो प्रथम जिनस एथिक्स कौन करे इंडिविजुअल गुड सांगे सोशल गुड को मध्य एंश्योर करे लाइक इन द फर्स्ट पॉइंट इट नॉट ओनली एंश्योर इंडिविजुअल सोशल गुड बट आल्सो एंश्योर्स individual good now when I am telling the word good what do you mean by it what is good भलो कोन कि खराब कोन बैड इम्पैक्ट हाँ सेटा पचरछि बैड माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय बैड और व्हाट डू यू मीन बाय गुड suppose I am telling Satyajit is a good boy what do you mean by good so remember the term good comes from the word god okay ये जो good term अछि it comes from the word god okay so good ର ମଧ୍ୟ तार गोटे inherent value अछि okay good is run by a value system okay so something good that means if you adopt that goodness it will lead to a good life added with moral principles and values okay मु जदि सत्यजित को कहूँ से गोटे भल पिला ता अर्थ कौन पाई सत्यजित रो जो प्रैक्टिसेस अच्छी जो कंडक्ट अच्छी जो कैरेक्टर अच्छी दैट इज हेल्पिंग हिम टू लीड अ गुड क्वालिटी लाइफ एंड also that is helping for what establishing morality in his personal life okay bad रहुछि तार opposite दा अर्थ तुमर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अछि किमा तुमर जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ अछि that is going towards negativity okay जोटा कि आज गले हमें नेगेटिव ऑरा बोली कहूछि और बैड वाइब्स बोली कहूछि ठीक अछि ता अर्थ if something is bad it is lacking some moral principles it is lacking ethics and it is lacking some positive value okay so ethics ensures individual good as well as social good okay let us give an example how ethics ensures individual good as well as social good can you give me an example बोथ गोटे एक्शन रे इंडिविजुअल गुड भी एस्टाब्लिश होतबा एवं सोशल गुड भी एस्टाब्लिश होतबा गिव एन एग्जांपल सी एथिक्स इज आल्सो अबाउट एग्जांपल्स मु जदि गोटे स्टेटमेंट दोची थियोरेटिकल स्टेटमेंट दोची थियोरेटिकल स्टेटमेंट पछरे तुमे केमती एग्जांपल दोचो से एग्जांपल रे डिसाइड करिवो तुमको केते भलो मार्क मिलबो okay let me give you an example suppose there is a water stress region or जो गोटे एरिया अछि जोटी वाटर डेफिसिट अछि so water deficit area रे suppose farmers माने कोन करले सेठी से माने इमती टेक्नोलॉजी किबा इमती प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करले व्हिच इज वाटर सेविंग जेमती फॉर एग्जांपल कोन करि परिबे से माने वाटर को सेव करिया पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करि परिबे आउ yes आउ ड्रिप इरिगेशन करि परिबे सो सपोज गोटे वाटर स्ट्रेस एरिया रे फार्मर्स माने कोन करूछि एमती किछिटा प्रैक्टिसेस माने से माने अडॉप्ट करूछंती जोटा कि वाटर को सेव करूछि देन इट इज व्हाट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ गुड प्रिंसिपल एथरे कोन होछि तांकर इंडिविजुअल गुड मते एंश्योर होछि ता अर्थ नेक्स्ट वर्ष जो चाष करिवे तांको पाखरे पानी रहइबो सो दैट से पानी को से माने यूज करिवे ये पर्पस रे
इरिगेशन पर्पस रे से पानी को यूज करके चाष करले तांकर फसल भल हम फसल भल हेले तांकर इनकम भल हम एवं तांकर क्वालिटी ऑफ लाइफ भल हम ठीक अच्छे नाउ सोशल गुड केमती एनश्योर होची एथिरे गोटे लोकटे जदी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूची छात ऊपर तबे हाउ दैट इज इंपैक्टिंग द सोसाइटी बिकॉज से लोकटा फार्मिंग करूची फार्मिंग से करूची तो फसल आसिला तो फसल आसिला से फसल को कौन करूची से मार्केट को चैनलाइज करूची सप्लाई करूची मार्केट को सप्लाई करला परे सोसाइटी रो अन्य लोक माने मध्य सीडी खाइबा फूड सप्लाई पाई पारुछंती ओके सो जस्ट one good action or one positive action has a multiplier effect not only at individual level or private level but also at a macro level or social level okay that is why I am telling ethics ensures individual good and social good so you can give this kind of example okay you can give this example farmers in water stressed region adopting water saving techniques okay एतरे कोन collective good as well as individual good ensure होची okay next secondly good term hoche summum bonum okay summum bonum that means attainment of highest good summum bonum means attainment of highest good attainment of highest good okay so attainment of highest good means what एटा को हमें definitive happiness मध्ये कहता definitive happiness so if you get a question like what do you mean by happiness so you can introduce your answer like this for me happiness is summum bonum that is happiness of the highest number or definitive happiness ठीक अच्छे thirdly ethics provides a moral map और moral compass मध्ये जाको कहा जाय moral compass मध्ये कहा जाय which helps you to navigate throughout your life to determine what is good and what is bad okay जो तुम्हारा ethical principle केतरा अछि for example someone is a very honest person or someone is a very upright person or someone is a very person with integrity right तो तारो core foundational value रे honesty और integrity अछि तो से जदी कोनोसी गोटे difficult situation face करूची then ताको rescue जो तारो foundational value अछि honesty सेटा ताको rescue करे ओके और बुड़ेबो मत सपोज गोटे लोक चोर अछि और गोटे लोक इज अ वेरी फ्रॉड बाय नेचर ओके माने डिसीव करिवा तारो वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशनल वैल्यू डिसीव माने ठकीबा राइट तो से जदी गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन रे पडुची किबा गोटे डायलेमा वाला सिचुएशन रे पडुची डायलेमा रो अर्थ कोन जदे तुमे दीटा सिचुएशन रे माने गोटे क्लियर कट एक्शन नै पारो सपोज मु तुमको पचारली तुमे चिकन खाइबो ना पनीर खाइबो is this a situation of dilemma yes no this is not a situation of dilemma माने तुम एटी क्लियर कट जे तुम नॉन वेजिटेरियन you will choose chicken if you are vegetarian you will choose paneer as simple as that okay केते लोगों पे सेटा डायलेमा हे पारे जो मान को सब खाया अछि okay they prefer non vegetarian and they also prefer vegetarian okay but this is a simple example but there are some instances where dilemma situation arises जोटा कि कोन हम कोन को conflict of interest okay let me give you an example that how dilemma can confuse your mind right so suppose satyajit
Satyajit becomes an officer. Okay, and he raises up to the post of joint secretary, additional secretary, or secretary. Take for example, he becomes secretary to some department. He becomes secretary to department of agriculture. Okay, now when he is acting as the secretary of department of agriculture, government of India गोटे स्कीम लॉन्च कला से स्कीम रे कौन कौन करा जिवो जो माने फार्मर्स अछंती तांकू आमे जेहेतु कि रिन्यूएबल एनर्जी को वर्तमान प्रमोट करूचे तो सोलर पैनल तांकू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जिवो सो फार्मर्स मान को और विथ सम सब्सिडी तांकू सोलर पैनल दिया जिवो सो दैट समान तांको जो वाटर पंप अच्छी किंबा तांको जहाँ भी सब जिनस अच्छी सेटा को समान विदाउट लेस विथ लेस कॉस्ट समान सेटा को चले पारिबो तांको इलेक्ट्रिसिटी बिल रे बहुत बेसी खर्च करिया को पड़िबो राइट तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम फ्लेक्सिबल स्कीम it will ensure social good as well as individual good. Now Satyajit रा गोटे पुओ अच्छी फॉर एग्जांपल ओके सत्यजित हैज अ सन एंड सत्यजित सन तार सोलर पैनल रो बिजनेस अच्छी से गोटे माने सत्यजित जेतिकी पैसा कमेला व्हाइट मीन्स रे से व्हाइट मीन्स रे 200 करोड़ सत्यजित इन्वेस्ट करिकी गोटे फॉर एग्जांपल ता पुओ पय गोटे कोन करला गोटे इंडस्ट्री खोल देला गोटे फैक्ट्री खोल देला जोतरे सत्यजित रो जे सन अच्छी से कौन करुच्ची सोलर पैनल सेडी प्रोड्यूस करुच्ची ओके बट सत्यजित जेतिकी ऑनेस्ट सत्यजित जेतिकी अपराइट एवं सत्यजित जेतिकी इंटेग्रिटी वाला लोक ता पुओ होची तार पूरा उल्टा ओके डोंट माइंड सत्यजित ओके आई एम नॉट कर्सिंग योर फ्यूचर जनरेशन आई होप दे विल टर्न टू बी गुड सिटीजन्स ओके लाइक यू नाउ से तार उल्टा है से कौन करुच्ची तार जो इंडस्ट्रियल जहाँ नॉर्म्स अच्छी कि सोलर पैनल इनती मिनिमम ए क्वालिटी रहा कथा कि एतिकी कॉस्ट रे मिनिमम आसिया कथा सत्यजित कौन करुच्ची सत्यजित पुओ से क्वालिटी रो बहुत कम रिड्यूस करके माने इनफीरियर क्वालिटी रो सोलर पैनल प्रोड्यूस करुच्ची ठीक अच्छे तो इनफीरियर क्वालिटी रो सोलर पैनल जदि प्रोड्यूस करुच्ची मार्केट रे लोक तार किणिबे सोलर पैनल किणिबेनी तो तार बिजनेस लॉस रे चलछि ओके on the other hand there is another business who is producing superior quality of solar panels person B okay with less cost ठीक अछि तो काली की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा कला कि इमते स्कीम आसीबो फार्मर मान को दिया हो सोलर पैनल तो बीट बाहरिबो माने कोन सेटा एड बाहरिबो कि बीट में माने आसी परिबो जे हमें जे सोलर पैनल कंपनी आसीबो जे सबुठु कम प्राइस रे एवं भलो भलो क्वालिटी रो सोलर पैनल सप्लाई करिवो आमे ताकू 500 कोटी रो कॉन्ट्रैक्ट दबो ठीक अछि तो सत्यजित रो पो देखला कि मो फादर अछंती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो सेक्रेटरी आ मु ऑलरेडी लॉस रे चली थी तो सी सीटो कोन कला याकू ब्लैकमेल करिया स्टार्ट कर देला ओके कोन कहला कि बापा मते जदी तुमे कॉन्ट्रैक्ट न दबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ऑलरेडी बिकॉज मोर लॉस रे चलची तुमे जानिचो मते जदी न दबो मु सुसाइड करते मु छात उपरु डेई पड़ी करिचो कि छोट बेल करिचो एमती करन कोन कर दानी घर पळेबी एटा भी करन ओके तो सत्यजित रो पो कहला कि मु सुसाइड कर देबी मते जदी ए कॉन्ट्रैक्ट न मिली तो सत्यजित सेही केस रे तुम कोन करबो को what will be your course of action and this is not an example of Satyajit this example for example it is an real life situation happens with everyone so what will you do in that circumstance हमेशा बुझिलो केस कौन क्या करोगे उसमें एक देयर इज अ सेइंग इन हिंदी क्या पीछे गए तो खाई और आगे गए तो पीछे कुआं और आगे खाई तो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन तो तुमको चूज करना है तुमको खाई में कूदना है फिर या फिर कुएं में कूदना है और उसी को चूज करना है जिसमें कोलेटरल डैमेज कम हो तुमको खुद को डैमेज कम हो और सोसाइटी को भी डैमेज कम तो इसमें तुम क्या चूज करो तो सत्यजीत यहाँ पे बोल सकता है कि मेरा जो सन है वो मेरे को बहुत प्यारा है तो मैं उसको जो है सेव करूंगा और देश भर में जो 60-50 करोड़ फार्मर्स हैं वो बाढ़ में जाए वो मर जाए मेरे को क्या है मेरा बेटा जिंदा रहेगा कल हम दोनों ट्रिप में फिर जाएंगे थाईलैंड वो जिंदा रहेगा तो
पैसा कमा के 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ऐसे बोलोगे? या फिर कि बेटे को मरने दो, 50 करोड़ फार्मर्स का बेनिफिट हो जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या करोगे? सो यू हैव टू चूज अ मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब देखो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि इधर तुम्हारा बेटा मरेगा या फिर फार्मर्स मरेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तुम ब्यूरोक्रेट हो मतलब क्या करोगे रियल लाइफ में? तुम अपने बेटे को समझाओगे बिठा के, ठीक है, कि बेटा देखो, लाइफ में जो है हार्डवर्क बहुत जरूरी होता है, लाइफ में क्वालिटी बहुत जरूरी होता है। ठीक है? तो तुम जिस राह में जा रहे हो, आगे चल के बुरा फंसोगे। इसीलिए मैं तुमको ये नसीहत देता हूँ कि क्या, तुम अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट को सुधारो। पहले तो तुम जो सुइसाइडल थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, पहले तुम उसको बंद करो। और उसको बंद करने के लिए कि मैं क्या करूँगा, मेंटल रिहेबिलिटेशन और मेंटल हेल्थ। ठीक है? एक मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा कि सर ये हर वक्त ऐसे सुइसाइडल थॉट्स इसके इसमें आ रहे हैं, तो इसको रिहेबिलिटेट कीजिए, इसको जो है क्या काउंसलिंग कीजिए, जो दवा ये सब देना उसको दीजिए और उसको ठीक कीजिए। ठीक है? एक पागल इंसान जिसको अपने लाइफ का ठीक नहीं है, वो दूसरों को जो है सोलर पैनल सप्लाई करेगा, वो ठीक सुनाई नहीं देता। ठीक है? और क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, बहुत सारे फार्मर्स का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि कैसे हाईएस्ट क्वालिटी का मिक्स और बेस्ट क्वालिटी का सोलर पैनल फार्मर्स के पास कम कॉस्ट में पहुंच पाए। कम कॉस्ट में होगा तो क्या होगा, आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। एफआरबीएम एक्ट के बारे में सब सुने होंगे। ओके? एफआरबीएम एक्ट क्या क्या कहता है कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम कैसे करना है, गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसको कैसे कम करना है। अगर कम कॉस्ट में हम अच्छे क्वालिटी के सोलर पैनल फार्मर्स को दे पाए, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स का निजी जिंदगी तो अच्छा होगा, उसके साथ साथ कलेक्टिव गुड भी अच्छा होगा। वो नॉट ओनली इंडिया का इंटरनल इकोनॉमी को सुधारेगा, बट इंडिया का क्या फॉरेक्स रिजर्व को भी ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो फूड ग्रेन्स बाहर से मंगवा रहे हैं, हम जो सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। ठीक है? तो एक एक्शन को तुमको तुमको जस्टिफाई करना है कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म है, वो बहुत ही ज्यादा विजनरी है। इसीलिए मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चाहूंगा। सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा, मैं अपने बेटे को क्या करूंगा, उसको इसी हिसाब से मैनेज करूंगा ताकि उसका सुइसाइडल टेंडेंसी जो है वो भी कम हो, और उसके साथ साथ मैं उसको कंसल्ट भी करूंगा ताकि वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो। तो इसी हिसाब से जो है यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, तो ये क्या करता है, मोरल मैप के हिसाब से काम करता है। अगर तुम्हारा एथिक्स है, जैसे कि यहाँ पे सत्यजीत इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्टी उसके ट्रेड ट्रेड में से एक है, बिहेवियरल या पर्सनालिटी ट्रेड में से एक है। तो ये क्या करेगा, वो चाहे कोई भी कितने भी बुरा बुरा सिचुएशन में फंस जाए, उसको रेस्क्यू कौन करेगा, ऑनेस्टी। ठीक है? नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिजॉल्व द मोरल इश्यूज। नेक्स्ट लिख दो, इट हेल्प टू रिजॉल्व द मोरल इश्यूज। it helps to resolve the moral issues and dilemmas and dilemmas, ये भी लिख दो। ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हारा जो है मोरल डायलेमा अगर नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा एस्पेक्ट स्ट्रांग होगा, तुम अच्छे से कौन सा काम कर पाओगे? तुम अगर डायलेमा में फंसते नहीं हो तो कौन सा काम कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? तो इसका मतलब एथिक्स का और एक इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड साउंड डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड साउंड डिसीजन मेकिंग, और ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि राइट है, जस्ट है और इंक्लूसिव है। ठीक है? तो जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो राइट है, जस्ट है और इंक्लूसिव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है?
Also, I would like to add something here. It also helps to be free from any kind of prejudices or stereotypes or discrimination. Okay, ethics helps us to be free from prejudices, stereotypes, or discrimination. Okay. Now, what is the difference between stereotypes, prejudices, and discrimination? Anyone? Yes. Oh, stereotype man. Sort of the bias. Okay. और discrimination man. भेदभाव करियो. तो तुम्हें translate कर दलो मुझे जोड़ा कर. Okay. Anyone? सौम्य. Stereotype, prejudice, और discrimination with the difference कौन? Okay. Let me tell you. First comes stereotype. Stereotype is the larger. Sorry. Is the lightest form of discrimination. It only includes the cognitive aspect. Cognitive. Okay. तुम्हें खाली भाबुचो. For example, there is a belief that people from Punjab are very aggressive and they are alcoholic. For example, this is a stereotype that we all have. Okay, कि जल्दी जो गोटे लोक कौन पगड़ी पिंधिकी आसिला तो से कौन करिवो से बटर चिकन खाइबो अल्कोहल पीकी बल्ले बल्ले करिवो. Okay, this is one of the common stereotype that, but is this true? No, this is not. That means at mental level आमे गोटे आमे थॉट प्रोसेस गोटे जनरेट करिचे जो थरे आमे गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल को आमे आमे सेही हिसाब रे देखुचे. This is only community माने cognitive level. Okay, or else take for example the way Muslims are treated in the country. Okay, जदि गोटे मुस्लिम पर्सन को तुमे देखुचो देन तुमे अटैच कर दोजो कि ए लोकटा इमती हेइथबो. ओके, तो प्रथम जिनस हला स्टेरियोटाइप माने तुमे मेंटली भाबिचो कि ये एमती हेइथबो माने सेही लोक को देखिला माने तुम माइंड रे सेही थॉट्स आसुची. गोटे पंजाबी को तुम देखिलो से यदि पगड़ी पिंधि तो तुम माइंड रे ऑटोमेटिकली लस्सी रो ग्लास पळे आसे और तुम माइंड रे ओल्ड मंक ऑटोमेटिकली पळे आसे. डू नो व्हाट इज ओल्ड मंक? ओल्ड मंक कोन जानिछो? कोन? अल्कोहल. यस. ओके, डू यू नो? You don't know what is old monk? Seriously, are you serious? Okay. Please explain. It is a brand of alcohol that is quite popular in India. Okay. You are very what? You are along with honesty and integrity. You are very much honest also. Sorry, innocent also. Huh? Okay. Now, yeah, I have just given this example. Now, when it is manifolding, it is advanced it becomes prejudice. Prejudice रे कौन करछो तुम्हें cognitive element तो अच्छी plus behavioral element भी अच्छी. Behavioral element. Okay. Yes. Okay. Behavioral element. माने तुम्हें जन को देखिले तुम्हें परहेज करूछो कि ताकू कोन ता नारे तुम कथावार्ता करूछ अन्य मान संगे. ठीक अच्छे, तो इट बिकम्स प्रिजुडाइज. तार एडवांस वर्जन टा होची डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन रे कोन होची कॉग्निटिव एस्पेक्ट तो अच्छी प्लस बिहेवियरल एस्पेक्ट भी अच्छी. एटी तुम कोन करछ एक्शन भी नौछ किछि एक्शन एस्पेक्ट भी अच्छी. Okay, for example, if you see a person from Muslim community एवं ता प्रति तुमरो स्टीरियोटाइप अछि तो तुमे ता संग कथा हबो तुमे ता पाखरे बसिबो बट मेंटली तुमे से लोक को जज करिवो. एमति करिजो जणक साथ मिसुचो किंतु ताको जज भी करूचो.
करते हो, सब करते हैं, ओके। बट वो अगर प्रिजुडाइज में होता है तो तुम क्या करोगे, उसके पास बैठोगे नहीं, ठीक है, उसके पास बैठोगे नहीं और उसको जज भी करोगे, बट उसको कुछ बोलोगे नहीं कभी तुम, ताकि उसको बुरा लगे, बट तुम, उसका मतलब है तुम्हारे माइंड में उसके अगेंस्ट कुछ प्रिजुडाइसेस है। जब तुम डिस्क्रिमिनेशन पे उतर आते हो तो कॉग्निटिव एलिमेंट है, तुम उसके पास बैठोगे नहीं, उसको जज भी करोगे और उसको 2-3 गाली भी सुना के जाओगे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो कर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर तुम्हारा एथिकल एस्पेक्ट, यार एथिकल फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रांग है, तो क्या होगा, ये स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइसेस और डिस्क्रिमिनेशन करना तुम बंद कर दोगे, चालू रखोगे, बंद कर दोगे, ठीक है। तुम इंसान को इंसान के हैसियत में देखोगे, ओके। क्लासेस, क्लासिस्ट और क्या कम्युनल या फिर कास्टिस्ट, ऐसे नजर से तुम आज इंसान को देखना बंद कर दोगे, ठीक है। क्योंकि कल को तुम पब्लिक सर्वेंट होगे, पब्लिक ऑफिसर होगे, और जब जब एक तुम पब्लिक ऑफिसर हो रहे हो तो तुम एक कम्युनिटी और या फिर एक क्लास या फिर एक कास्ट के लोगों को सर्व नहीं कर रहे, तुम मल्टीपल लोगों को सर्व, तुम डाइवर्सिटी पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हो। और तुम जब एक ऐसे पोजीशन में जाते हो तो तुम्हारा न्यूट्रल रहना, तुम्हारा इम्पार्शियल रहना, तुम्हारा क्या ऑल इंक्लूसिव रहना बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल के टाइम पे पब्लिक सर्वेंट क्यों बदनाम है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, एक सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलीव कर रहे हैं और एक सर्टेन कम्युनिटी को ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, और बाकी कम्युनिटीज को वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, राइट, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स एंड व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, कैन यू एक्सप्लेन, ओके, क्या क्या लिखोगे उसमें? सोशल गुड, समम बोनम और डेफिनेटिव हैप्पीनेस, और डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स ड्यूरिंग डिलेमा और एथिकल डिलेमा, और प्रोवाइड्स अ मोरल कंपास और मोरल मैप, ये सब, और क्या, फ्रीडम फ्रॉम बायसेस, स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब पॉइंट्स लिख के थोड़ा थोड़ा तुमको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इवेल्युएटिंग एथिकल कंडक्ट। उससे पहले मैं और एक तुमको जो है बोलना चाहूँगा कि अगर एथिक्स एब्सेंट है तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज अराइज होते हैं। एथिक्स क्या है हमने समझ लिया, इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स भी समझ लिया, बट इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एथिक्स लीड्स टू व्हाट, ओके, एब्सेंस ऑफ एथिक्स, एब्सेंस ऑफ एथिक्स ର consequences कौन कौन, ओके। तो मल्टीपल लेवल रे एथिक्स रो एथिक्स रो यूसेज बा यूटिलिटी आसे। तो फर्स्ट लेवल इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल, सेकंड इज सोशल और पॉलिटिकल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, आउ कौन कौन, एनवायरमेंटल लेवल रे भी आसी परिबो, ओके। नाउ let us count one by one। प्रथम जिनस को जदि इंडिविजुअल लेवल रे एथिक्स रो कमी अछि कि एथिक्स रो एथिकल डेफिसिट अछि तो कौन कौन कॉन्सिक्वेंसेस होबो तार। जदि गोटे पर्सन रो एथिक्स रे किछि इश्यूज अछि तो कौन कौन माने कौन कौन इश्यूज हुए कि कौन कौन सर्टेन ट्रेट्स गोटे अनएथिकल पर्सन भितर जन्म, एम्पथी और सिंपथी न रहे को कौन कहती, एपथी, ओके। तो इंडिविजुअल लेवल रे कौन हुए, एब्सेंस ऑफ एथिक्स थिले, प्रथम है एपथी, ओके, एपथी रहिबो ता अर्थ तार एम्पथी किंबा सिंपथी रहिबो नहीं। आ कौन, दैट पर्सन विल बिकम इगोइस्टिक, ओके, इगोइस्टिक और इगोइज्म, ओके। और क्या,
जितने भी बुरे क्वालिटीज हैं तुम्हारे फ्रेंड्स में, तुम वो उसको लिस्ट आउट कर दो। क्या क्या और क्या? प्रियंका भाभी शुभश्री नारायण को कौन कहिए? हाँ, डिसऑनेस्ट। ओके ओके, आई एम नॉट मीनिंग यू। ओके, डिसऑनेस्ट। हाँ, झगड़ा लगुଛି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛ ନା? झगड़ा, यस। सॉरी, जजमेंटल। तुम्हारे फ्रेंड जजमेंटल है? अच्छा ठीक है, जजमेंटल। आओ आओ कौन? ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେମିତି ଏଥିକ୍ସ ନଥିଲେ? ସୌମ୍ୟା, ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍। ओके, सेल्फिशनेस मध्य। Okay, anyone would like to add something or not, etc. Okay, all these bad qualities are result of arrogance. Yes, arrogance, egoism रे हमें लिखि परिबा, and biasness. Yes, biasness भी लिखि परिबा एठी। Good, biasness. Okay, now social level रे जदि lack of ethics रहिला कोन हबो? social level रे को, सॉरी, सोशल लेवल में कि इंडिविजुअल लेवल में? ये इंडिविजुअल तुमने जो बोला वो इंडिविजुअल लेवल में, ठीक है, कि नॉट हैविंग क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। सोशल लेवल में क्या होगा बताओ? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जो भी तुम आर्टिकल 15 में पढ़े, ठीक है। और देखो, इसका मतलब ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रैक्टिस करने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, और क्या? हाँ हाँ, से आसब रिलीजियन बेसिस तुम जो डिस्क्रिमिनेशन कर, इट लीड्स टू कम्युनलिज्म। आउ कौन? सॉरी, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डेफिसिट। ओके, डेवलपमेंट डेफिसिट, क्रिमिनल माइंडसेट। ओके, क्रिमिनल माइंडसेट, mob lynching. Okay, mob lynching. See, there is no incorrect answer in this. Whatever you say, everything is correct. How gonna? Corruption. Okay, gender violence. Okay, gender violence. Gender violence is तो extreme. Lack of ethics lead to the बहुत लोगों को ethics नहीं, क्योंकि ସେମାନେ gender violence କରନ୍ତିନି, कि ସେମାନେ domestic violence କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ कौन करन्ति? They have a very patriarchal mindset and they commodify women. Commodification of women. Commodification of women. How gonna? Shaming of what? Shaming of LGBTQ. Okay, this can be also, I mean, currently we are seeing people are not so inclusive when they are facing people from other sexual orientation. They are not in a position to accept them. जो online trolling हो, what is it? It shows a clear lack of social morality or social ethics. Okay, the kind of news that we have been seeing recently, this the controversy of this 370 rupees biryani. Okay, it shows what? That people are severely lacking ethics, social ethics. Or the incident of a particular of that medical student who is making mockery of cadaver of or dead bodies. It shows what? She is lacking
social ethics and also individual ethics. Okay, next. Political level रे कौन होची? Yes, corruption. How? Sorry, ratipism. Okay, political level पे corruption होची, ratipism होची. How? Sorry, nepotism होची. Okay, nepotism. How? Political level रे कौन होची? Use of muscle power. Use of muscle power. Muscle power. Okay, there is an important term, criminalization of politics and politicization of criminals. कौन? Criminalization of politics and politicization of criminals. यार अर्थ बुझिल? You didn't get it. Criminalization of politics means politics रे धीरे धीरे कौन होची? Crime बढ़ी बढ़ी चली. Okay, that means politics is made into a safe haven for the criminals. Okay, honest people or what? Normal people generally do not have accessibility to politics. That is what we know as criminalization of politics. And second, politicization of criminals. And it is leading to what? The political parties are directly making contacts with criminals. Why? Because they need them. They are inviting criminals to join their political party, contest elections and become MLAs, MPs and ministers. Okay. So जो माने गुंडागर्दी करथिले तांकर धीरे धीरे राजनीतिकरण करा जाउची, ता अर्थ तांको राजनीति को अणा जाउची. Okay, so in the term you need to write in the answer. Criminalization of politics and politicization of criminals. They're quite similar. Both are same. Okay. Nepotism means if you are favoring someone of your close relative, that is called nepotism. Favoritism means it may be someone who is not closely related to you, but you are favoring that person. For example, you have received money from, or you have received any kind of favor. ओके सेठी में को फेवरेटिज्म कहूँ ता अर्थ से फेवरेटिज्म रे ट्रांजैक्शन अच्छी किसी ना किसी. ओके से तुमको मु सपोज चाकरी पाइबा पे मु कौन कली मु कमिशन को जाइए पैसा देली तो कमिशन को पैसा देला पर कमिशन मते कौन देला चाकरी देला ता अर्थ से मते फेवरेटिज्म प्रैक्टिस कला. बट जदि कमिशन रे जे चेयरमैन अच्छी से ता पुओ को चाकरी दे था तो सेटा हमें कौन कहते नेपोटिज्म. ओके ठीक अच्छे. नेक्स्ट एनवायरमेंटल लेवल रे कौन हो एनवायरमेंटल एथिक्स रो कमी हेले लेट मी नो. एनवायरमेंटल एथिक्स रो कमी हेले कौन हो पॉल्यूशन हबो डिफॉरेस्टेशन हबो इलीगल माइनिंग हबो आउ ग्लोबल वार्मिंग हबो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हबो एनिमल क्रुएल्टी हबो. ओके ठीक अच्छे. डिफॉरेस्टेशन हम
ओके नेक्स्ट इंटरनेशनल एथिक्स रे कमिले कोन कोन तार कॉन्सिक्वेंसेस कोन कोन हम selective exploitation of natural resources, yes, okay, yes, that is also correct. Now tell me international ba global ethics रो absence हेले कोन कोन हम अमेरिका जहाँ करुच्ची वर्तमान हाँ वॉर करिबो यस वॉर आउ आउ कोन हम सॉरी yes that can be termed as what कौन कह pseudo shortage no. We can term this as supply shortages for developing and underdeveloped nations okay आउ टेररिज्म देखा जीवो पाकिस्तान जिमनी करूची ओके ट्रैफिकिंग ओके ह्यूमन ट्रैफिकिंग एप्स्टीन फाइल्स रे जेमते हेतले ओके यस तापरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो माने अछंती दे विल बिकम वीक ओके वीकेनिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ठीक अच्छे नेक्स्ट ठीक अच्छे ये बुझेला समझते गॉट इट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट सो next I will directly move into dimensions of ethics. What are the different dimensions of ethics? So ethics can be broadly, we can classify ethics into two parts. One is normative ethics and one is value ethics. Okay. Normative और value ethics. सेटा को हमें अलग अलग हेड रे पढ़ी. Normative ethics और value ethics. Normative ethics and value ethics. ओके तो नॉर्मेटिव एथिक्स रे तार अलग अलग कौन डायमेंशंस अच्छे ओके सर गोटे गोटे करी आमे देखियो तो सबुठ इम्पोर्टेंट जोटा तुम केस स्टडीज मानक यूज कर परिबो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म राइट डाउन यूटिलिटेरियनिज्म एटा का अंडर रे आसुची एटा नॉर्मेटिव एथिक्स अंडर रे आसुची ओके यूटिलिटेरियनिज्म ठीक अच्छे तो यूटिलिटेरियनिज्म जोटा अच्छी एटा को बेसिकली प्रोपाउंड दीटा थिंकर मेजरली करथिले के वोल्टास इमैनुअल कैंट आउ श्योर नो यूटिलिटेरियनिज्म को दीटा थिंकर देथिले राइट डाउन जेरेमी बेंथम आउ जॉन स्टुअर्ट मिल ओके के
तो पढ़िना एगुड़ा के जेरेमी बेंथम आउ जॉन स्टुअर्ट मिल जो बा जेएस मिल एटा मन रख है जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल एटा कोर यार कोर वैल्यू कौन यूटिलिटेरियनिज्म ओके व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूटिलिटेरियनिज्म कम्स फ्रॉम द टर्म utility okay who can define what is utility suppose यही मोबाइल रो यूटिलिटी कौन पचारे ओके आम पचारू कि सपोज तुमको गोटे गिफ्ट दिया गला तुम पचारू तुम सांगू यही जिनसर यूटिलिटी कौन तो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी मीन्स द नीड सैटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विस ओके तार अर्थ जदि गोटे गुड अच्छी सेटा तुमर आवश्यकता जहाँ अच्छी तुमर नेसेसिटी जहाँ अच्छी सेटा तुमर आवश्यकता को किपरि भाव में परिपूर्ण कर तुमर नीड्स बा तुमर रिक्वायरमेंट्स को केमती फुलफिल कर दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ओके यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी अच्छी गोटे दैट फोकसेस कि आमर गोटे एक्शन सोसाइटी रो केते लोकंकर नीड को फुलफिल कर ओके एडा एडा सब बेले आमे कोन करू पब्लिक सर्विस रो कॉन्टेक्स्ट रे यूज करू यूटिलिटेरियनिज्म ओके यूटिलिटेरियनिज्म रो कोर आइडिया होची हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर लिखि दियो इट बिलीव्स इन maximum overall happiness and benefit of maximum overall happiness and benefit of largest number of people ओके एडा को अदरवाइज हम कौन कहू ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स बोली मध्य कहता इट इज अदरवाइज नोन एज ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स लेट मी गिव एन एग्जांपल ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स ठीक अच्छे so few years back there was an incident in Delhi so there was a slum in Delhi called Sakur Basti okay Sakur Basti को गोटे जगह अच्छे दिल्ली रे Sakur Basti बा जोटा को स्लम बोली आमे को ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिटी गोटे प्रपोजल देला कि आमे कौन करिया आउ से Sakur Basti इज अ ह्यूज स्लम से थाउजेंड्स ऑफ लोक रोते से जो कौन कहते को झुगी झोपड़ी करके रहती जो ओके इलीगल सेटलमेंट बा सॉरी कौन टेम्परेरी शेड बा टेम्परेरी सेटलमेंट करिकी तांको सेठी से छावनी करिके से माने रहते बहुत लोग माइग्रेट करती बिहार झारखंड यूपी रो तो तांको दिल्ली रे रहया पे जगह नहीं तो से माने सेठी जाई रहते ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटी गोटे डिसीजन नेला कि आमे कौन करबा बिकॉज दिल्ली रे ये होची क्राउड धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलची तो आमे हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पई हमको आहुरी जगह दरकार तो जो दिल्ली रे पाखापाखि 3टा ना 4टा रेलवे स्टेशन टोटल गोटे निजामुद्दीन गोटे आनंद विहार आ गोटे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इनते 3टा ना 4टा अछि तो आफ्टर हैविंग 3 स्टेशंस आल्सो ट्रेन गुडा को ट्रैफिक एते बेसी रहउतला कि सब ट्रेन लेट होतला तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से डिसाइड कला कि आमे गोटे आउट नुआ स्टेशन आमे क्रिएट करबे एवं नुआ स्टेशन आमे कोठी करबा ये सकुर बस्ती जोटी बहुत लोग रोचंती सेटा को आमे बाहर करिके से लोक मान को बाहर करिके सेटा तांको घर भांगी के आमे सेठी कोन करबा ट्रेन लाइन बिछेबा एवं सेठी ट्रेन माने आसी सब रहिबे सो दैट ट्रेन रो ट्रैफिक कम हो ओके नाउ सपोज यू आर अ पब्लिक सर्विस ऑफिसर तुम रेलवे रो गोटे सीनियर पोस्ट रे अछ तुमको एमती गोटे प्रपोजल दिया है तो तुम कोर्स ऑफ एक्शन सेठी कौन रहे बस्ती भांगी दियो आ गोटे रिसेटलमेंट बा रिहैबिलिटेट तुमको करा ओके आउ किछि सॉल्यूशन
but see, you are a officer of the railway, so you do not have power to rehabilitating those people. तुम पाखे पावर अच्छी तुम पाखे पावर कौन अच्छी कि से लोक मान हटे पार बिकज बहुत सारा बस्ती जोटा अच्छी जनरली से रेलवेज प्रॉपर्टी अच्छी फॉरगेट अबाउट सी दिल्ली राउरकेला भी तुम जो बहुत सारा बस्ती मुझे जानी से एक्चुअल रेलवेज प्रॉपर्टी तो से जबरदखल करके रही था ठीक अच्छे तो तुम ये कौन कर तो जदि आम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करुचे तो आम आम से कौन मुझे कौन कहली मैक्सिमम गुड हाईएस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर तो आम जो रेलवे सपोज नहीं जाओ सकुर बस्ती 10,000 लोक रोचे तो आम जो 10,000 लोक को बाहर करुचे तापर जो रेलवे ट्रैक बिछेले तार बेनिफिटा 10,000 कम लोक मिल ना 10,000 बेसी लोक मिल बेसी लोक मिल दैट मीन्स जो रेलवे ट्रैकटा अच्छी से ऑल ओवर द कंट्री जो मैंने भी दिल्ली जाऊँ बेनिफिट देव टाइम से पहुंची पारे ट्राफिकिंग कम रोके तो ये जो नंबर्स अच्छे ये एथिक्स को आम नंबर्स अनुसार डिसाइड करूँ कि कोटा ठीक कोटा भूल जेहेतु कि 10,000 इज लेस देन 1,000 के फॉर एग्जांपल इट इज गोइंग टू बेनिफिट 1,000 के पीपल एज कंपेयर टू 10 के पीपल हु आर गोइंग टू बी harmed or negatively affected through that project right तो आमे इठी कौन चूज करिवा तांकू 10 के लोगों को आमे सकुर बस्ती रु बाहर कर देबा एवं तांकू कौन बस्ती भांगी की आमे सेठी रेलवे ट्रैक पके बुझिलो यूटिलिटेरियन कौन सपोज क्लास रे गोटे एग्जांपल दो सपोज क्लास रे 20 जन पिला अछंती 20 जन पिला को मु कहली कि कौन मु तुम मानू क्लास रे मिठा डिस्ट्रीब्यूट कर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सी थ्रू 2 जन पिला कहले कि सर हमको फॉर एग्जांपल हमको स्वीट भल लगे नहीं हमको पिज्जा दियंतु समस्त ओके तो मोर राइट कोर्स ऑफ एक्शन कौन हम फॉलोइंग द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स मु जदि दीटा पिला मिठा न भी खाऊं किंतु 18 जन पिला खाऊं तो मुझे 18 जन पिला खाया देवी और सपोज 2 जन को मिठा न देले फॉर एग्जांपल से भोकर मरीज माने दुनिया से लास्ट 20टा मिठा फॉर एग्जांपल तापर आउ खाया मिलबनी तो मु 2टा मिठा न देले सपोज माने डेथ हो जाउछ तो सही केस रे भी मु कोन अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल आई शुड डू दैट लेट द 2 पीपल डाई बट 18 पीपल विल सर्वाइव ठीक अच्छे बुझल कौन यूटिलिटेरियन तो वर्तमान केस स्टडी यदि पढ़ला ये प्रिंसिपल को यूज करके तुम लिखिपर ना नहीं तुम जो लिखल मुझे कोर्स ऑफ एक्शन जमी मुझे पचारि कौन सत्यजित एग्जांपल देती सत्यजित जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी अच्छी से सोलर पैनल कौन कर परचेज ये करुच्ची कॉन्ट्रैक्टर नौ तो ये कौन ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का फेवर रे अच्छी फार्मर्स मान फेवर रे अच्छी जदि भी जन गोटे लोकर लॉस है गोटे लोक सुइसाइड कर मरीगला किंतु लार्जेस्ट बेनिफिट क्या मिल फार्मर्स मान को मिल तो मोर कोर्स ऑफ एक्शन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन कौन हम आई वुड प्रिफर दैट कंपनी व्हिच इज प्रोवाइडिंग सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स डेस्पाइट 1% इज डाइंग 1-2 मरने हैं तो मरने दो 5-6 भी मरने हैं तो मरने दो 100 भी मरने हैं तो मरने दो अगर 100 अगर मर के 1,000 को फायदा मिल रहा है तो दैट इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू utilitarian principles. All the social sector schemes are run through this principle. ठीक अच्छे जमी फॉर एग्जांपल सुभद्रा योजना पैसा आम दौचे ओडिशा रे केते लोक अछंती पॉपुलेशन विल बी अराउंड 5 to 6 crore 6 crore ओके तो सुभद्रा योजना केते जन को मिलुची मैक्सिमम वुमेन मान को मिलुची केते जन को मिलुनी सेटा कम लोक को मिलू तो जदि बेसी लोक गोटे स्कीम रे बेनिफिट होउचंती देन आमे सेटा को परसू करियो ठीक अच्छे सो दैट इज द कोर आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म केते जन गोटा भूल भी लागि पारे भूल भी लागि पारे केते जन कि सर 10,000 लोक कोन करिवे वर्तमान तांको भितर केते जन जाई कि टेररिस्ट भी पारंती तांको भितर केते जन जाई कि नक्सलाइट्स हे पारंती that would create a what
सिक्योरिटी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो तो सही केस रे कौन जॉन स्टुअर्ट मिल आउ जेरेमी बेंथाम एते दूर को भाभी नथिले से माने बस यूटिलिटेरियन दे देले तो तार आंसर मो पाखरे भी नहीं ओके नेक्स्ट यस लिखियार अछि क्रिटिसिज्म लिखि दियो क्रिटिसिज्म भी लिख यूटिलिटेरियनिज्म रो क्रिटिसिज्म कोन प्रथम जिनस ए माने कोन करूचंती क्वांटिफाई करूचंती हैप्पीनेस आउ मोरालिटी को कैन हैप्पीनेस मोरालिटी और वेलबींग be quantified in numbers no so first limitation यार होची it is impossible to quantify compare or measure happiness or well-being ठीक अच्छे यूटिलिटेरियनिज्म ताहले फीलिंग्स इमोशंस ये सब जिनस को अकाउंट रे नोन ओके दिस कैन बी अनदर लिमिटेशन it does not considers feelings emotions culture justice etc it doesn't consider feelings emotions culture और justice ठीक अच्छे आउ गोटे यार सब बड़ क्रिटिसिज्म होची यूटिलिटेरियनिज्म सब जिनस को ब्लैक एंड व्हाइट रे देखी ओके ब्लैक एंड व्हाइट रे केमती एतिक लोक को दबा एतिक लोक को बाहर कर दबा ओके ग्रे बट एक्चुअल रे सेमती होई कि रियल रे सपोज क्लास रे काली के सत्यजित कहला कि सर मु मिठा खाइबे मु पिज्जा खाइबे तो मु सत्यजित कहबे तुम क्लास रो बाहर तुमको आम खाइबो दबो एमती मु कहबी केबे एमती मु जनरली कहबी नाही until and unless I am mentally unsound जदि मु मेंटली साउंड अच्छी मु कौन करी सत्यजित पाई पिज्जा ऑर्डर करदेबे ना नहीं यस आई विल डू इट जदि से कहला सर मु एटा खाइबी ना मते पिज्जा दरकार मु पिज्जा ऑर्डर कर बिकॉज आई एम व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड तो जहाँ को गोटे दुटा पिला को सपोज एक्स्ट्रा जिनस दरकार मु तांको सेटा आनी के दे देबी दैट मींस यूटिलिटेरियनिज्म ग्रे एरिया को फोकस करू नाही इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट so write down in utilitarianism there are no shades of gray there are no shades of gray there are no shades of gray it is black and white it is black and white okay but actual life टा कौन black and white लाइफ टा एक्चुअली ग्रे बहुत सारा जिनस आम कौन करूँ कॉम्प्रोमाइज करूँ ओके सपोज घर को एबे गल क्लास सारिक टायर्ड हो जाइछ तुम तुमर एक्सपेक्टेशन थिला कि घरे आज तुम पसंद खाइबा हेतु ओके कौन आमिष व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी कुक टुडे ना तुम जानी कौन कराई यू डोंट नो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुडे कुछ भी यू आर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सो एक्सपेक्ट फॉर एग्जांपल आज आज घर को गले मटन नहीं फॉर एग्जांपल यू एक्सपेक्ट दिस बट घर को गले कौन पाओ लकी जन्नी तरकारी ओके घर को गले मम्मी जाको जन्नी तरकारी मिले तो इफ सी जन्नी तरकारी तो से कौन से गोईठा मारिकी फिंगी दिए कौन कर फास्ट जाके चिल्लेब मैंने गाँव ऐसे रोज रोज ऐसे ये बनाते हो ठीक है दिमाग ये घर में पैदा होना ही गलती था ऐसे एमती कर फास्ट 5-6 मिनट तुम्हें चिल्लेब तापर कौन कर तुम ममा से बुझेबे तुमको कि झील खाईदे आज राति जहाँ पसंद कर
ठीक अच्छे तू जदि तो दरकार मुझे गोटे अंडा ऑमलेट कर दूँ एमती कहते इतना बोलते हैं तो कि नहीं कि बोलते हैं मत खाओ करके बोलते हैं तो इतना ठीक है ओके तो जनरली पेरेंट्स करते हैं कि ठीक अगर नहीं खाते तो कुछ कर देते हैं लेकिन ये जो तुम्हारा जो डिमांड है ये कभी और करेंगे ठीक है तो लाइफ देखो यहाँ पे तुम्हारे मदर ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और तुमने भी कॉम्प्रोमाइज किया तुम्हारा डिमांड मटन खाना था लेकिन तुमने जो है जॉनी में तुमने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया दैट टू विद एग ऑमलेट ठीक है तो लाइफ ऐसे कॉम्प्रोमाइज में चलता है ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता नेक्स्ट ठीक है अच्छा दीटा जिनस अच्छी गोटे हूँ मीन्स आ गोटे हूँ एंड एटा समस्त जानी मीन्स आ एंड मीन्स माने कौन टूल जरिया मीडियम एंड माने आउटकम और आउटपुट ओके जमती मत सपोज स्कूल रे एडमिशन नबार अच्छे ओके मत गोटे छोटे छुआ को देखिली से स्कूल रे पाठ पढ़ुनी कि तार पाठ पढ़े पैसा नहीं तो मो मन में गोटे महानुभव आइडिया है कि मुझे छुआ को पढ़ाई मु पैसा फंडिंग करी ओके फंडिंग केमती कली मु आज रात डाका पकड़ बाहर बैंक एचडीएफसी बैंक साइड अच्छी मु गली से 15-20 लक्ष मुझे डाका मारिकी आणिकी से छुआ को भल एडमिशन देली भल कपड़ा पिंधि किणीदेली भल खाଇବା देली तो मो एक्शन ये मोर एंड टा भल अच्छी ना नहीं एंड इज गुड मोर मोर मीन्स इज नॉट गुड यूटिलिटेरियनिज्म कौन कहे एंड शुड बी गुड एनी हाउ ठीक अच्छे सपोज तुमको एग्जाम रे टॉपर हबार अच्छे तुम वर्ष सारा पाठ पढ़ तुम कौन कल एग्जाम रे माइक्रो जेरोक्स नहीं चिटिंग कल ओके माइक्रो जेरोक्स नहीं सब क्वेश्चन आसला सब टिपी देल टॉपर हो गल यूटिलिटेरियनिज्म कौन कह ethical very good okay why like our parents they only like the outcome like the society they only like the outcome so society is basically utilitarian in nature okay they do not see the means okay जे सेकंड आसी से वर्ष सारा परिश्रम कर से 18 घंटा पढ़ी ता पेरेंट्स ताको कोन कहबे गाली करबे तू माने यू आर यूजलेस से एटा देखिबेनी कि ये केते हार्डवर्क के एफर्ट पकई ओके सो यहाँ भी लिखी दो तार लिमिटेशन इट जस्टिफाइज एंड्स एट द कॉस्ट ऑफ मीन्स it justifies ends even at the cost of means ठीक अच्छे तो जब खराब मीन्स रे भी तुम कौन सी काम कर यूटिलिटेरियनिज्म सेटा को जस्टिफाइड कर मुझे स्कूल रो एग्जांपल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट थ्योरी इज डिओंटोलॉजी एगुड़ा सब मन रख दिस वेरी इंपोर्टेंट बिकज तुम मैंने एथिक्स पढ़े न से तुमको एत जिन पढ़ाया को भाव नी एक्चुअली ओके मुझे खाली कही देती डिओंटोलॉजी यहाँ कि यूटिलिटेरियनिज्म यहाँ या ये जेएस मिल आउ जेरमी बेंथम कहते ये कही था बट जेहेतु तुम जान मत लगुच गोटे गोटे चैप्टर को गोटे गोटे क्लास कहती दीटा तीन तीन क्लास ना पड़ो लगे ओके ठीक अच्छे किसी ना नहीं कौन कर डिओंटोलॉजी डिओंटोलॉजी किए जान अच्छा आउ इट इज ऑपोजिट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म ओके डिओंटोलॉजी कौन करे ड्यूटी बेस्ड राइट डाउन deontology is a duty based system of ethics deontology is a duty based system of ethics which holds that
which holds that some actions are some actions are intrinsically right or wrong, intrinsically right or wrong, regardless of their consequences. Of their consequences. Okay. डिओन्टोलॉजी का संगे एसोसिएटेड बा किए प्रोपाउंड करथिले डिओन्टोलॉजी को इमैनुअल कैंट. ओके एटा मन रखो यूटिलिटेरियनिज्म नो डिओन्टोलॉजी को प्रोपाउंड करथिले इमैनुअल कैंट. ओके इमैनुअल कैंट, इमैनुअल कांत नो. ओके इट इज इमैनुअल कैंट. लक्ष्मीकांत लाइक नो, इट इज इमैनुअल कैंट. ओके इमैनुअल कैंट से गोटे कहिथिले राइट डाउन डोंट लाई, डोंट स्टील, डोंट चीट. से तीनटा जिनिस कहथिले डोंट लाई मिछ को नहीं, डोंट स्टील और एंड डोंट चीट. ठीक अच्छे. नाउ डिओन्टोलॉजी कौन कहूँ? You follow your duty or you do your duty. Okay, for example, you are posted as a district magistrate in a particular district. Okay, and you see a person or an old lady, for example, who is destitute. Okay, say basohino, destitute, ता पाखरे रहे घर नहीं, who is in the extreme line of the poverty. She is not even capable to arrange 3 times of food per day. से 3 टाइम रो खाइबा भी निज पाई अरेंज करि पारु नाही. ठीक अछि. Physically also she is very vulnerable. She has got very weak. She disease ताको विभिन्न प्रकार डिजीज भी हेइ छै. तमे सेही बुढ़ी लोकटा को देखिलो, ओल्ड लेडी को देखिलो. ओके तो तम मन रे किछटा एम्पैथी जागृत है कि गोटे लोक एते सफर करिया कथा न. एंड एज आई एम पोस्टेड एज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीगल पावर व लीगल अथॉरिटी जहाँ को यूज करके मु कौन करि परिबे तार अवस्था को ठीक करि परिबे. राइट. तो तुम पाखरे इटी दीटा ऑप्शन अछि. तो सपोज से बुढ़ीना तुम पाखु आसिला कहला कि मैडम और सर प्लीज मते रेस्क्यू करंतु आ मते कोन जहाँ भी सरकारी स्कीम अछि जेमती पीडीएस अच्छी जो 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 तेरे फ्री फूड मिलूँ कि 5 टन कौन जो इंदिरा आवास अच्छी जो तेरे तुम्हें फंड देकी गोटे लोकर घर तैयारी कर मत से सब बेनिफिट दियंतु. ठीक अच्छे. तो तुम्हें से केस कौन कर कौन कर तुम्हें फर्स्ट से कहला कि सपोज सपोज आई एम द ओल्ड लेडी. ओके एंड प्रियंका इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. आई रिक्वेस्ट her sir please or madam please give such and such access to and such benefits to me. What will be your action? Documents. Okay. So I am homeless and I am destitute. So I have no document. I have no Aadhaar card. I have no residence certificate. I have no this income certificate, or I have no even I have no none. I have no citizen proof. For example, she is a nomadic. Say गोटे जगह रो अन्य जगह बुलुचन. She is not a permanent resident of anywhere. Huh? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करियो फर्स्ट. ओके तापरे बिना डॉक्यूमेंट रे तुमे कि तांको रिहैबिलिटेशन दबनी, बिना डॉक्यूमेंट रे दबनी मरि गले से निज तरफ माने तुम निज पॉकेट रो पैसा देबो तुम. हां हां जे सेटा को 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 फंड रो दबो 3 टाइम्स ऑफ फूड गवर्नमेंट फंड रो दबो ना निज निज पैसा रो दबो सैलरी रो.
निज पैसा दब केते दिन दब निज पैसा अच्छा से जब बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेंट बाहर ओके ओके सो डिओन्टोलॉजी कौन कहूँ डिओन्टोलॉजी कहूँ कि डू योर ड्यूटी तुम ड्यूटी कौन से जमी कहला कि बिना कौन ऑफिशियल बा डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रे मु कौन प्रकार बेनिफिट बा सोशल सर्विस बेनिफिट मु दे पारिबी नाही तो तेणु करी फर्स्ट मु कौन करी डॉक्यूमेंटेशन करी ओके तो डिओन्टोलॉजी सेटा कहूँ ओके गिव दिस एग्जांपल as per the deontological approach a civil servant should follow the rules and regulations without thinking about the consequences ओके अच्छा से बहुत क्रिटिकल स्टेज रे अछन माने एमदी बारे आधार कार्ड बनो से भगवान के प्यारे हे जाई पारंत तो तुम आधार कार्ड बनेबो ना कोन करिवो डिओन्टोलॉजिकल अनुसार तुम आधार कार्ड बनेबो जेतु के सेटा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा अछि तुम देखुछ से लोकटा एबे लास्ट स्टेज रे अछि किंतु तुम से टाइम रे भी कोन फॉलो करिवो रूल्स फॉलो करिवो ओके डोंट थिंक केते प्रैक्टिकल एटा नो डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी एटा कहूछ ओके मु सेटा कहूछ जोटा डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी कहूछ मु भी एटा माने गोटे लोक मरुती तुम तापर कोन तार आधार कार्ड बनेबो सेटा ना कोन करिवो ताको फास्ट केमि बंचेबो दैट शुड बी योर अप्रोच सी जहा करन कॉन्सिक्वेंस जहा भी हो लोक तुम से लोक मैंने अच्छा सब बहुत लोक सब लोक कहते ये बचाओ तुम कि कौन कर आधार कार्ड बनौच तार हाँ तुम ना कौन बयस के तुम लेफ्ट हैंड थम इम्प्रेशन ये दियो तुम सेमती कर बहुत लोग कि 100 लोग अच्छा से तुमको बहुत खराब भाषा गाड़ी कर कि यू आर एन कौन तू गोटे पशु तू ऑफिसर हवा योग्य तू खाली से मरी जाऊ तो अवस्था आम बुझू है एमती कहते बाद भी तुम कौन कर ड्यूटी कर डिओन्टोलॉजिकल हिसाब से बिकॉज इमानुएल कांत कौन कहते ड्यूटी कर से जहाँ कॉन्सिक्वेंस से मरीगला तुमको लोक आसिक मारत भी तुम जान मु माड़ खाइबी स्टिल तुम ड्यूटी कर ओके हाँ हाँ सी ये कहली एथिक्स रे ठीक भूल किसी ना देख जो डिओन्टोलॉजी एटा एटा 100% ठीक कि 100% भूल की ताहले कौन ग्रे जोन रे लाई करछि एटा इट इज मान नथिंग इज 100% करेक्ट और नथिंग इज 100% रॉन्ग इट लाइज इन बिटवीन सो एमती ना कि तुम्हें जो डिओन्टोलॉजिकल फिलोसफी को अडॉप्ट करी गोटे आंसर लिखुच इट विल नॉट बी 100% इनकरेक्ट तुमको कौन कौन तुम्हें जो भी फिलोसफी नेल जो भी कॉन्सेप्ट नेल सेटा को यूज करके तुमको जस्टिफाई करियार अछि सपोज ए केस स्टडीटा आसिला ए जो ओल्ड लेडी ओके से डेथ बेड रे अछि तुम तार आधार कार्ड बनौछ तुम कहल हाँ मु आधार कार्ड बनेबी से केमती करबो जस्टिफाई हाँ जे कौन कौन लिखिबो से डिओन्टोलॉजी को पुणी जस्टिफाई करिया अछि बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट रे ए जिंस लिखा है आमे प्रोसीजर फॉलो करिवो also article 21 of the Indian constitution which is the supreme law of the land it says that procedure established by law so I will always follow the procedure आ कौन लिखिबो श्रीमद् भगवत गीता रे श्री कृष्ण कौन कहते कर्म कर्म करि चल फलर आशा कर नाही जोटा कि बुद्ध भी कहते तेणुक मु कर्म कर चलिए कॉन्सिक्वेंसेस और आउटपुट को मु देखिबी ना एमती करी तुम एटा को आहुरी जस्टिफाई करिया को पड़े माने भूल भूल जिन सब लिखि देलो यू हैव टू जस्टिफाई दैट ओके नेक्स्ट डजंट इट साउंड क्रेजी इनह्यूमन साउंड करूची यस बट एग्जामिनर बट बहुत रियल जगह एमती हुए रियल तुम काली के ओएस आईएएस ही जब तो रियल बहुत सारा केसेस तुमको एमती करिया को ही पड़े
है माने बहुत सारा केसेस अच्छी जोटी तुम जानूब यहाँ भूल होटा अनएथिकल कि यहाँ इनह्यूमन स्टिल तुमको कौन कौन तुमको जो प्रोसीजर रे ही जावाक पड़ो तुम्हें से कौन सर्टकट नहीं पार ना देयर इज नो सर्टकट इन पब्लिक लाइफ एबे जमते सपोज तुम गोटे भिकारी को देखिल कि तुम गोटे डेस्टिट्यूट लोक को देखिल तुम घर खाଇବା आनिक दे दौच बट सेटा कौन तुम्हें सर्ट टर्म रिहाबिलिटेशन दौच बट तुम जो गवर्नमेंट रे जाऊच तुमको जन को लॉन्ग टर्म रिहाबिलिट तार हाउसिंग बुझा पड़ो तार फूडिंग बुझा पड़ो से गोटे थरे खाया देदेल हेनी कि थरे पॉकेट मनी देदेल हेनी ओके यू हैव टू एनश्योर दैट दैट पर्सन लिव्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ तो तुम घर बन इंदिरा आवास पैसा सैंक्शन कर मिनिमम 2-3 लाख से बहुत सारा प्रूफ अच्छे सो यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द रूल्स अंकिता जमी कहला मुझे पॉकेट मनी देते बट तार रहा घर नहीं केमती कर पॉकेट मनी तुम हाईएस्ट 500 कि 1000 टका दे पार खायापी घर बनवा 5 लाख दे पार 5 लाख एक तो निज अकाउंट है ना तुम डेस्टिट्यूट को केमती दब ओके नेक्स्ट यार लिमिटेशन कौन कौन कह तुम मान को देयर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमन इमोशन लिखी दियो देयर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स ठीक अच्छे नेक्स्ट इट में प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस that can be unacceptable to most या अर्थ कौन तुमको मेजोरिटेरियन व्यू एगेंस्ट रे काम करिया को पड़ियो मु जेमती कहली गोटे बुढ़ी डेथ बेड रे अछि 200 लोक सेडी कौन घेरिक अच्छा समस्ते कहते कि तू कौन तू फास्ट बंचा बट तुम से आधार कार्ड बनौच दैट मीन्स यू आर 1 वर्सेस 200 मेजोरिटेरियन अगेंस्ट ही तुमको डिओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करिया को पड़ियो ओके I would like to give another example deontology for example गोटे डॉक्टर अच्छे ओके तो डॉक्टर मानकर जो तांकर कौन गोटे ओथ नियंती कौन हिप्पोपोटाम कौन did they take an oath at the end of their degree I always tell that hippopotamus oath but it is not hippopotamus oath I always forget that it is what just a minute sorry yes okay it is not hippopotamus okay it is Hippocratic oath which the doctors take at the end of the commencement of their graduation तो से माने से ओथ रे गोटे थाए कि तांगर जो माने पेशेंट आसुचंती से माने तांगर प्राइवेसी को ब्रीच करिवे नाही किबा कोनोसी प्रकार प्राइवेट इंफॉर्मेशन को से माने लीक करिवे नाही सेटा कन्सील करी के बा सेटा को से माने गुप्त करी के रखिबे सपोज गोटे डॉक्टर पाको मु गली मोर कोन पर्सनल डिजीज अछि सपोज कि मोर कौन ब्लड ग्रुप कौन कि मोर एज कौन मोर हाइट कौन मोर रिकॉर्ड कौन मान मोर हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ हिस्ट्री कौन अच्छे से डॉक्टर सब जानिबो तो सपोज जड़े गला आउ सतीत गला आउ पचारा आउ ये जो आसीला या पूर्व यार हेल्थ हिस्ट्री कौन कौन माने या पास्ट रे कौन कौन डिजीज थे टे कहल डॉक्टर से केस रे कहया कथा कि कहया कथा नुह अकॉर्डिंग टू मेडिकल एथिक्स ओके सपोज गोटे लोक डॉक्टर पाक गला और डॉक्टर से डिटेक्ट कला कि या गोटे बहुत बहुत सीवियर पैथोजेन या बॉडी रे अच्छी जो पैथोजेन टा जदि अन्य लोक मानक इन्फेक्ट कला तेबे गोटे मास इन्फेक्शन हम कोविड-19 भाया और बहुत लोक मान डेथ हम ओके से डॉक्टर टा हिप्पोक्रेटिक ओथ नहीं आसी
तो साइंटिस्ट मैंने देखिले कि माने कौन 2-3 लोगों को ऑलरेडी डिजीज हो जाए आ डिजीज रो कौन मेडिसिन ना आ डिजीज है माने फर्टिलिटी रेट इज 100%, माने जहाँ को डिजीज है से 100% मर। तो आम पाखे गोटे ही ऑप्शन अच्छे कौन डिजीज रो प्रिवेलेंस को रोकवा, डिजीज स्प्रेड को रोकवा। तो ता पाखु साइंटिस्ट मैंने गले आ पचारे कि सर आ जो लोकटा आपन को पाखु आसला चेकअप करने तार हेल्थ हिस्ट्री दिखाँ तार कौन 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 कौन। ओके, तो जदि डॉक्टरटा डिओन्टोलॉजी फॉलो करुचे से कौन कहबो मु इनफॉरमेशन लीक करि परिबे नाही बिकॉज मु हिपोक्रेटिक ओथ नहीं। ओके, तो से इनफॉरमेशन देलानी किंतु ता फल रे कोन हला से लोक बाहर जाके 1000 लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर देला, इन्फेक्ट करी 1000 लोगों डेथ भी गला। तो से डॉक्टर जदि डिओन्टोलॉजिकल फिलोसफीज रो से जदि गोटे स्ट्रांग बिलीवर से कोन रिग्रेट फील करिया कथा कि ना से रिग्रेट बिकॉज मु काम करछि मु मोर जो एथिकल प्रिंसिपल जोटा अछि जोटा मु ओथ नेतिली माने कोनोसी प्रकार इन्फॉर्मेशन लीक न करे मु सेटा करिनी 100 लोक मोले मरंतु पछे हला किंतु मु मो कामटा करे माने ठीक से करछि। ओके, बुझ परछो इजंट इट इंटरेस्टिंग? हां, नेक्स्ट एग्जांपल्स केमती करिवो एग्जांपल्स ना ऑटोमेटिकली माइंड को आसे कलेक्ट केमती करबो एग्जांपल दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन। मु जा कहूँ लेख ताले सब एग्जांपल लिखि दे। ओके, तो तुमको हार्डली 20-25 एग्जांपल देबा को पड़े एग्जाम में, तो सेति में तुम पाखर 100 एग्जांपल रेडी थिबा कथा सो दैट क्वेश्चन रो रेलेवेंट को बेस करी तुम एग्जांपल दबो। ओके, तुम सेठी किछि भी एग्जांपल सेट भी करि पारि। अच्छा, तुमको तुमको स्टोरी बनवा आसे ना नहीं? मिछ स्टोरी बनवा कहा को आसे? जहाँ को मिछ स्टोरी बनवा आसे से एग्जांपल सेट कर दबो, मते सेटा आसे। ओके, नुआ नुआ जिनस बनवा आउट ऑफ नोवेयर। Okay, I would give you examples, don't worry. So you can write this also, doctors wala. Briefly लिख दिया खाली, a doctor taking Hippocratic oath not to conceal any patient's details. ये डेटा बहुत इंपोर्टेंट कौन कौन यूटिलिटेरियनिज्म और डिओन्टोलॉजी। ओके, ठीक अच्छे। नेक्स्ट बाकी ये देखो डेस्क्रिप्टिव अच्छी एथिक्स अच्छी दैट स्टडीज एक्चुअल एथिकल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स पीपल वैल्यू। मेटा एथिक्स, मेटा माने कौन? एनीवन व्हाट डू यू नो मेटा? कौन मेटा माने कौन? मेटार अर्थ होची नॉलेज ऑफ नॉलेज। ओके, मेटा माने होची नॉलेज ऑफ नॉलेज माने नॉलेज गेन करिवार भी गोटे नॉलेज अछि। ठीक अछि, जोटा को हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को रिसर्च मेथोडोलॉजी बोली को रिसर्च मेथोडोलॉजी कैन बी एन एग्जांपल ऑफ मेटा साइंस जो दरे नॉलेज केमती गेन करा हबो सेही ऊपर तुम नॉलेज। फॉर एग्जांपल मु तुमको भी पढ़ेबे कि हाँ ट्राइबल एरियाज रे माइनिंग रो कोन इंपैक्ट रही। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिसर्च क्वेश्चन, ट्राइबल एरियाज रे कोल माइनिंग रो कोन इंपैक्ट रही। तो एटा एटा कोन मु तुमको रिसर्च क्वेश्चन देली तो एटा ए थ्रू तुम नॉलेज जनरेट करिवो कि कोल माइन साला पड़े ताकर हेल्थ इंपैक्ट कोन हिची, ताकर इकोनॉमिक इंपैक्ट कोन हिची, इस ताकर सोशल इंपैक्ट कोन हिची से सब स्टडी करिवो। बट से नॉलेज टा डेराइव करिवो से नॉलेज को नॉलेज को बेस करके से नॉलेज टा डेराइव करिवो। को प्रकार में तुम कोन सर्वे करिवो जाय कि
लोक गोटे लोक जाकि इंटरव्यू कर क्वेश्चनएयर कर तुम सैंपल सर्वे कर ग्राउंडेड थियरी यूज कर तो बहुत सारा एमती थियरी अच्छी जोटा को यूज करके तुम नॉलेज जनरेट कर फॉर एग्जांपल मु तुमको कहली कि फंडामेंटल राइट गोटे चैप्टर अच्छे फंडामेंटल राइट जो आम कहलु कि यही प्रकार राइट अच्छे जोटा लोक मानकर ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी ठीक है तो से जिनसा आसला के फंडामेंटल राइट केमती आसला से और जो लोगटा कहना कि ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी से नॉलेजटा केमती आसे और जे कहला राइट टू प्रिवेसी बहुत इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रिवेसी केमती आसे से कौन गोटे मेथड लगे आमे कौन आमे आमे हूँ सेकेंड हैंड रीडर ये बुकटा अच्छी जड़े लिखीचे ना आमे सेकेंड हैंड रीडर से लिखला बोले आमे से नॉलेजटा से पढ़ीदे जनरेट बट जो लोगटा लिखीचे से फर्स्ट हैंड से तो किसी गोटे नॉलेज बा मेथड यूज करथिबो जोटू से नॉलेज डेराइव करिछि ओके सेटा को मेटा कहନ୍ତି बुझिलो तो मेटा एथिक्स माने होचे एक्सपोज द कोर मीनिंग्स एंड एसेंस ऑफ एथिकल कांसेप्ट्स जिमनी यूटिलिटेरियनिज्म फॉर एग्जांपल आमे वर्तमान पढी यूटिलिटेरियनिज्म कोटू आसीछि केमती आसीछि कोन पय आसीछि व्हाई व्हाट व्हेन हाउ ऑल दिस क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड बाय मेटा ओके किए बुझी पारलनि एटा सिंपली नॉलेज ऑफ नॉलेज लिखिए नॉलेज ऑफ नॉलेज मेटा मीन्स एप्लाइड एथिक्स यू नो एप्लाइड एथिक्स माने कोन जहाँ भी पढ़िले तारो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड एप्लाइड एथिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियरीज टू स्पेसिफिक फील्ड लाइक बायोएथिक्स बिजनेस एथिक्स एटसेट्रा okay next third one is अच्छा मैं यूटिलिटेरियन पढ़ देले डिओन्टोलॉजी पढ़ देले नेक्स्ट होचे हमर वर्चू एथिक्स को के देथिले एरिस्टोटल ओके अच्छा बाय द वे वर्चू एथिक्स कौन जनरली इमतिया क्वेश्चन आउ पचारू नाही यूटिलिटेरियनिज्म कौन इमती क्वेश्चन पचारू नाही बट ओपीएससी रो किछि भरसा नै ओपीएससी लास्ट टू लास्ट ईयर 15 मार्क गोटे क्वेश्चन पचारि देला व्हाट यू मीन बाय वर्चू एथिक्स ओके सेति में मु एटा टिके तुम पढौछि लेखो वर्चू एथिक्स कौन अच्छा वर्चू रो ऑपोजिट कोन मु कहितली क्लास फर्स्ट रो अंकित व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्चू सुभाश्री वर्चू रो ऑपोजिट कोन अमीशा ओके वर्चू रो ऑपोजिट होची वाइस फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय वर्चू virtue is what something that is morally good write down a virtue is a morally good disposition a virtue is a morally good disposition to think feel and act well to think feel and act well in some domain of life in some domain of life तार ऑपोजिट वाइस रो डेफिनेशन कोन होबो ए वाइस इज अ morally bad disposition involving think feel and acting badly वर्चू रो केतरा एग्जांपल दियो कौन कौन वर्चू अछि गुड क्वालिटीज केतटा वर्चू कौन करेज ओके टेम्परामेंट परसेवरेंस आउ इनिशिएटिव
sorry, neutrality, yes, generosity, all these are examples of virtue. Vice ର କେତେଟା example ଦିଅ? cowardice, injustice, ଆଉ କ'ଣ? कंजूस लोक मैंने कौन कहते? miser. Okay, all these are examples of vice. So lekho, what is virtue ethics? It is character based approach to morality. It is character based approach to morality developed by Aristotle and other character based approach to morality developed by Aristotle and other ancient Greeks. It is a curiosity. It is a curiosity to understand and live a life of moral character. ओके, तो वर्चुअल एथिक्स रो गुटे माने पिकुलरिटी होची एटा केवल कोन राइटनेस कोन और रॉन्गनेस कोन, गुड कोन बैड कोन ता भितरे क्लासिफाई करे नाही, बट इट आल्सो सेज which behavior should be shown by a person or inducted by a person to be a good person. virtue जेमति ने कोन कोन करले भलो सेटा. ओके, से केवल भलो खराब भितरे डिफरेंशिएट करेनी. It also includes a should component to it. Okay, next. जल्दी यार गोटे एग्जांपल सपोज दबार अछि कोन दे पारियो वर्चुअल एथिक्स. फॉर एग्जांपल जेमते उत्तराखंड रे फ्लड्स हेत 2013, तो उत्तराखंड फ्लड्स रे बहुत सारा लोकल लोक जो माने थिले से माने कोन करथिले, जो माने टूरिस्ट माने फ्लड रे फसी जाइतिले, लोकल लोक माने निज लाइफ को थ्रेट रे पकेगी, रिस्क रे पकेगी टूरिस्ट मानन को रेस्क्यू करथिले. ओके, से माने जानि थिले कि टिके भी जदि ऊंच नीच हो तबे आम लाइफ भी सिटी जाई पारे. Despite knowing that fact, they rescued the tourists. So ये जो एक्शन अच्छी एटा कौन शो करुची? Helping others despite knowing that we have a risk to ours or threat to our own life. ओके, और कोविड-19 रे एग्जांपल नहीं पारियो. कोविड-19 रे बहुत लोगों रो डेथ होतला, आउ इनफेक्ट भी बहुत इजीली लोक माने होतला, राइट. तो जो माने डॉक्टर्स माने थिले से टाइम रे से माने जानि थिले कि आमे इनफेक्ट हमको इन्फेक्शन हमारा मैक्सिमम चांसेस अछि, 99% चांसेस अछि. डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट से माने कोन रेगुलर बेसिस रे हॉस्पिटल जाउतिले एवं पेशेंट मानकर सेवा करूतिले. तो से माने पर्सनल कंफर्ट को पछरे रखी कि रोगी मानकर सेवा को प्रायोरिटी दउतिले. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल एथिक्स. ओके, ठीक अच्छे. तो बेसिक जिनस गुड़ा आम ये पढ़ीदेले. नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, that is determinants of ethics. एथरो
बहुत वर्ष क्वेश्चन आछि व्हाट आर की डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स ठीक अछि की डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स रो अर्थ होछि कोन को सोर्सेस व्हाट आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर एथिकल स्टैंडर्ड्स अराइज डिटरमिनेंट्स माने होछि sources from which ethical sources or ethical standards arise basically एटा केतरा फैक्टर मान को विषय कहूची जो दरु गोटे मनुष्य भल हे पारे खराब हे पारे एथिकल हे पारे अनएथिकल हे पारे जस्ट हे पारे अनजस्ट हे पारे ओके कौन कौन से फैक्टर मते एबे को फर्स्ट फर्स्ट फैक्टर कौन आसे इट लिखा है बोले कॉन्सेंस कौन फर्स्ट फैक्टर कौन जोटा गोटे लोक को भल कि खराब बने एथिकल कि अनएथिकल बने कैरेक्टर गोटे छोट छुआ जन्म होती कैरेक्टर समस्त जो जन्म ऑल आर सेम नो देन हाउ विथ एज समवन बिकम्स गुड एंड समवन बिकम्स बैड फर्स्ट फैक्टर इज फैमिली ओके इन व्हिच फैमिली यू हैव born so first is family and especially family रे किए मदर mother is the first teacher of a child से कहते ओके फैमिली टीचर्स एंड सोसाइटी ओके से कहते इट टेक्स अ community to raise a child okay we are social animals we get severely impacted by our social construct or social functionaries आम चारि आम पाखापाखि लोक केमती अच्छा सेटा आम एथिकल कंडक्ट उपरे बहुत मात्रा प्रभाव पकाए ओके जमी फॉर एग्जांपल गोटे पिला सपोज छोट दिन बस्ती बड़ हो ओके आउ गोटे पिला गोटे प्रॉपर इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट रे वेयर पेरेंट्स आर एजुकेटेड जोटी घरे भल माने पीस अच्छी ताको भल खाଇବା मिलची भल एजुकेशन मिलची तो आफ्टर 6 to 7 years ऑफ लाइफ दी जन को भितर डिफरेंस रहइबो ना नहीं यस रहइबो देयर आर केसेस ऑफ व्हाट एक्सेप्शंस एज वेल जो माने कोन not so good environment रो आसी भी they become good persons but generally जो देखिबा 99% of cases रे कोन हेते फैमिली एवं एनवायरनमेंट एवं टीचर्स और सोसाइटी रो गोटे बहुत बड़ इंपैक्ट रही राइट जेमती फॉर एग्जांपल लेट अस से आमे समस्तंकर किछिटा एमती क्वालिटी अछि गुड और बैड जोटा आमे फैमिली टू डेराइव करछि okay next acha anything good quality that you would like to say one quality per individual that you have inherited from your family कौन प्रियंका compassion towards humans or animals or both अच्छा गो तो घरे कौन शिखेते तुमको जो तुम कंपेशन शिखिल ओके हेल्प करो आगे सौम्य को ओवर शेयरिंग that is not a good quality but माने you have brought up like that कि तुम्हें जितके दरकार ताटो भी शेयर कर दे कहीं ये तो 2 घंटा गले किसी कहि न शेयर करना तुम ओके ठीक अछि ओवर शेयरिंग आउ की अंकिता anything any ethical quality that you think you have inherited from your family trust okay good how Susmita Rasmita yes leadership how
कौन मारपीट गंडल कर चल आउ माने निजे तुम इनिशिएटिव नहीं कि सेठी किछ गोटे डिसीजन लियो एंड हाउ डिड यू लर्न दैट फ्रॉम योर फैमिली कि योर फादर वाज सम लीडर और व्हाट अच्छा से माने लीड करूतिले ओके नाइस यस सुभाष everyone in the comment section also let me know any ethical quality that you have inherited from your family amisha argument sorry sorry hard work okay sorry hard work how ke rahile satyajit teetotaler huh? Who is not even aware about what is old monk. That is one good quality he has inherited from his family. You know what is it? Who is a teetotaler? जो माने yes they are called teetotaler जो माने जमा drink करते हैं yes सत्यजीत any good quality that you have inherited from your family respect okay तुम रहे वाला कही दे तुम कही देছো तुम कहना patience yes so all these are qualities that we have inherited from our family there is one in Indian family there is one common value that we are taught from childhood that is what respecting and treating well to the guests जो माने घर को गेस्ट आछंती जदि बा से माने सेति रेस्पेक्ट डिजर्व करंदिने नॉर्मल लाइफ ओके स्टिल just because the sake that they are our guests we treat them in good manner okay so for my case I would say हम घरे छोट बेले मु देख पेरेंट्स मान को देखि गेस्ट आसले तांको खाइबा पीबा इसु करन तो से जिनसडा मो ऊपर दैट हैड अ वेरी नाइस व्हाट ग्रेट इंपैक्ट तो घरे किया आसले भी मु जाने ए लोगडा भलो नुह ओके से तारो मो लाइफ रे नेगेटिव रोल अछि ओके स्टिल वी डू व्हाट अब भलो अछंती घरे भलो अछंती चा पीबे कॉफी पीबे ना चा पीबे ना कोल्ड ड्रिंक्स पीबे वी डू दैट ओके सो अतिथि देवो भव जोटा अछि सेटा somehow ingrained in every I mean in our trait okay next how kono apart from family and teachers how कारण कोइट देखि कि को एबे किछि कहबेनी फास्ट सरी गेला तापर को तापर रिलीजन एंड कल्चर रिलीजन रो हम एथिक्स एथिकल बिहेवियर ऊपर इंपैक्ट पड़ी ना नहीं कौन 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 एमती रिलीजियस बा कल्चरल जिनस अच्छी जोड़ा तुम एथिकल बिहेवियर ऊपर इंपैक्ट पकई क्या व्हाट हैव यू टॉट आई गेस मोस्टली पीपल आर फ्रॉम हिंदू वे ऑफ लाइफ ओके okay if anyone following any religion so what have you taught from your particular religion कौन लेसन मिलছে लाइफ तुम रिलीजन फॉलो कर ट्रूथफुलनेस को रिलीजियस प्रीटेक्स्ट माने सॉरी टेक्स्ट पता तुम जाना पड़ भगवत गीता रे कौन लिखा है यू हैव टू साइड दैट आल्सो यस जाना है तुमको ठीक है जाओ सॉरी हाँ ठीक है हाँ सॉरी भाई सरला 122 होगला 130 सरता ओके सो फॉर एग्जांपल करेज इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम आवर ट्रेडिशंस कल्चर एंड रिलीजन okay for example by reading Hanuman Chalisa I got to know how Lord Hanuman was courageous okay केमते से रेस्क्यू करथिले बहुत लोग केमते से बहुत लोग जीवन बचैथिले तो सेही हमको जाने को मिलला कि करेज इज अ क्वालिटी दैट वी शुड इम्बाइब विद इन आवरसेल्फ ओके नेक्स्ट आउ कोन कंसाइंस रो अर्थ कोन इनर सेल्फ कंसाइंस कॉन्स्टिट्यूशन रे कोड लिखा हिची कि कंसाइंस टर्म कोड लिखा हिची नहीं
DPSP रे एटा कोन प्रीलिम्स जोटा हेले लेखा है बेले नाही नो इट इज नेगेट कर दउछ यस लेखा है आर्टिकल 25 रे फ्रीडम ऑफ conscience and freedom to practice propagate and profess one's religion of choice ओके एटा आर्टिकल 25 रे भी लिखा है नेक्स्ट लॉ लॉ रो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हमको पता दिले कि कोडा करिया कथा नुह ओके रोल मॉडल्स ओके हमरो रोल मॉडल्स मध्ये केतेटा थांती सेटू हमको जाना पड़ी कि के तुम रोल मॉडल किए अंकिता हु इज योर रोल मॉडल दीपिका पादुकोण आओ सी कुंभकर्ण is the role model of Ankita. It shows a lot about her personality. What she must be doing? She must be sleeping for long hours. दुनिया का आग लगी है बस्ती में हम अपने बस्ती में ठीक है सी किसी भी जाओ दुनिया माने कौन जली जाओ से भासी जाओ अंकिता सोईथिबो ओके बिकॉज सी इज अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ कुंभकर्ण ओके आउ का रोल मॉडल एमदी अछि किछि श्री कृष्ण श्रुति महापात्र सी की ओ ओ नाइस व्हाट इज हर नेम श्रुति महापात्र नाइस मूवी जे तांको ऊपर को मूवी हाँ how I am not aware about this Shruti Mahapatra yes you can cite her example also okay right Shruti Mahapatra तांको विषय में सर्च करियो you can quote in your answers Shruti Mahapatra okay next ଆଉ कौन एजेंट्स ऑफ इनकलकेशन टाइम और नॉलेज सोसाइटी ये सब जिनस हमको एथिकल बिहेवियर विषय बहुत किसी जना पड़े और आम से इनकलकेट कर बहुत सारा मोरल एवं वैल्यूज ठीक अच्छे ओके देन विल कंक्लूड इट हियर टुडे फ्रॉम नेक्स्ट आई गेस आउ गोटे क्लास रे यही चैप्टरटा हमर सरी जो आज 50% ऑलमोस्ट सरी जाइए ठीक अच्छे चलो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर योर टाइम हैव अ गुड डे